Hello everybody and welcome back to FarmGen Spectra. आज के वीडियो में we'll be talking about class 10th का chapter number 1 that is the rise of nationalism in Europe. So basically इस वीडियो को start करने से पहले let us understand that what is the meaning of the word nationalism. Nationalism, you can say it's a feeling of pride for belonging to a nation, right? जैसे आप बोलते हो like it's your nation, it's your country, your motherland. So this is a very feeling of nationalism. अगर आपके एग्जाम में ये लिखने आता है for 1 or 2 mark, what you can write is nationalism is an ideology and movement that promotes the interest of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. Now, having said that, हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखोगे एक आपको ऐसा फिगर मिलेगा when you will see in the chapter. इस फिगर के अंदर you can clearly see there are a lot of things, right? From the remains, shattered remains at the bottom to the angels in the clouds and a lot of people in the procession. So अभी हम इस पूरे फिगर को समझेंगे but उससे पहले the most important thing over here is what is this figure or picture known as? So it is known as the pact between nations. So when it comes in your exam you should know इस picture को हम बोलते हैं the pact between the nations and it was made in the year 1848. Okay, so अभी जो आपने image देखा है which was made in the year 1848, it was made by this person whose name is Frederick Sorio. Okay, so he was born in the year 1807 and who is he? ये है कौन? ये एक बहुत ही famous French artist हैं जिनकी जो images हैं यानी इनके द्वारा बनाई गई images जो pictures थी वो बहुत ही prominent यानी एक बहुत ही leading उनका एक role था in the French Revolution. Now 1848 में जैसे मैंने आपको अभी दिखाया he prepared a series of 4 prints और basically जो भी इनके dreams थे जो भी इनके aspirations थे कि world ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए उसको ये एक picture form में draw कर देते थे. So right, जैसे अभी हमने इनका picture देखा अब हम उसकी explanation देखेंगे कि वो basically ये बोल क्या रही है उस picture में. So जो उनका पूरा picture है उसमें आप देख सकते हैं a lot of people are marching and when they're marching they pass by the Statue of Liberty. So here you should note that Statue of Liberty जो यहाँ पे है what is it standing for? It is standing for the freedom. Liberty का मतलब ये होता है freedom. Then जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में बहुत सारे सिंबल्स थे जो कि हमने यूज किए थे टू शो फ्रीडम एंड अदर राइट्स लाइक इक्वालिटी जस्टिस एंड ऑल दैट. सो वैसे ही यहाँ पे 2 सिंबल्स को यूज किया है जैसे द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट and the other is the charter of the rights of a man जो कि वो फीमेल फिगर ने अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है. So you should remember ये आपके 1 मार्कर में आ सकता है. ओके एंड ऑन द ग्राउंड जैसे मैंने आपको दिखाया जो पिक्चर है उसमें ग्राउंड में क्या है यानी ये जो जमीन है उसके ऊपर शैटर्ड रिमेन शैटर्ड यानी टूटे हुए रिमेन्स पड़े हैं. ये आप याद रखें कि मिस्टर फ्रेडरिक का सोच है ये कि जो मोनार्क है जो एक शासन है एक राजा का वो इस तरह बिखर के इट इज लाइक फॉलिंग ऑन द ग्राउंड and this is the remains of the symbol of absolutist institution. Now what is absolutist institution? It is a form of government in which all the power is vested in one authority यानी कि एक ऐसी form of government जिसके चलते जिसके अंतर्गत सारी पावर एक ही रूलर के हाथों में है. ठीक है, उसके बाद सोरियो ने ये भी बताया है कि कैसे वर्ल्ड जो है वो अलग अलग नेशंस में कैटेगराइज्ड है और वो कैसे कैटेगराइज्ड है ये हमें कैसे पता है? हमें ये बात पता है बाय लुकिंग एट देयर डिफरेंट कलर फ्लैग्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स. तो जो उन्होंने अलग अलग तरीके के फ्लैग्स पकड़े हैं उससे और उनकी कॉस्ट्यूम से हमको ये बात पता लग रही है. The United States and Switzerland headed the procession. तो जो पूरा प्रोसेशन चल रहा है उसमें सबसे आगे कौन है? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड. उनको फॉलो करते हुए वी हैव फ्रांस एंड जर्मनी. देन फर्दर वी हैव ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सेलिसिस, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. प्लीज नोट ये सब इसीलिए मैंने सारे मेंशन करे हैं क्योंकि इन सभी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 मार्कर्स दैट कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. Then
जैसे आप देख सकते हैं उस पिक्चर के अंदर कि ऊपर से सम एंजल्स आर वाचिंग, सो बेसिकली ऐसा फ्रेडरिक सोरियो का ये कहना, ये मानना है कि कैसे ऊपर से गॉड इज लुकिंग एट देम एंड ब्लेसिंग देम दैट या थिंग्स आर सो गुड ओवर हियर। फाइनली अगर हम देखें तो जो भी सिंबल आर्टिस्ट यूज कर रहा है, यानी कि जो भी फ्रेडरिक सोरियो ने यूज किए हैं, वो सब सिंबल फ्रेटर्निटी शो कर रहे हैं। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी इज द फ्रेंडशिप एंड द म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप के अंदर, जो कि यहाँ पे नेशंस की बात हुई है, तो अलग अलग नेशंस के बीच में जो फ्रेंडशिप और म्यूचुअल सपोर्ट है, उनको वो शो करना या डिपिक्ट करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ते हैं अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि आपने अपने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1789 एंड वो 10 साल चला, और इसी के अकॉर्डिंग 1799 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया था। अब जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ऑन जुलाई 14 1789, तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, एक प्रिजन था जिसका नाम, प्रिजन यानी जेल, जो कि जिसको हम क्या बोलते, उस समय क्या बोलते थे, बेस्टाइल। ओके, इस बेस्टाइल को उन्होंने जाके स्टॉर्म करके तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये जो है ना, ये एक सिंबल है किंग की डिस्पोटिक पावर का, मतलब जो मोनार्क है उसकी पावर का एक सिंबल है ये। ओके, सो और जब ये एंड हुआ, ठीक है, सो हाउ इट केम टू एन एंड, इट केम टू एन एंड व्हेन एक जनरल आए जिनका नाम था नेपोलियन, जिन्होंने आके पूरा ओवरथ्रो कर लिया इस पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को। ओके, हिज होल नेम इज नेपोलियन बोनापार्टे। एंड ये सब होने से पहले जो लास्ट किंग थे आपके फ्रांस के, उनका नाम क्या था, लुइस 16। आगे हम चलते हैं और हम पढ़ेंगे अबाउट द मेजर चेंजेस दैट हैपेंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो क्या क्या बहुत सारे चेंजेस हुए। तो सबसे पहली बात, उन्होंने अपना एक न्यू फ्रेंच का फ्लैग ले लिया। ओके, एक नया फ्रेंच का फ्लैग डेवलप कर लिया। उसके बाद न्यू हाइम्स एंड ओथ्स, जैसे हमारे हैं जन गण मन, ऐसे उन्होंने अपने नए नए हाइम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे। उसके बाद फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। एक एक बॉडी फॉर्म की जिसमें बहुत सारे एक्टिव सिटीजन्स थे, और उनको नाम दिया गया एज अ नेशनल असेंबली। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉलो किया गया, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं। देन a uniform system of weights and measures, this is a very important and a very nice thing which happened, कि एक यूनिफॉर्म, यानी कि जैसा यहाँ है वैसा ही आपका, सपोज जैसा दिल्ली में है वैसा ही लखनऊ में होगा। एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स डेवलप कर लिया गया। साथ ही में इस आइडिया को लिमिटेड नहीं रखा गया टू एन एरिया, दिस वाज स्प्रेड अब्रॉड आल्सो बाय द फ्रेंच आर्मी। एंड लास्टली जैकोबियन क्लब सेटअप किए, वहां के स्टूडेंट्स ने और कुछ एजुकेटेड क्लास ने आपके जैकोबियन क्लब को सेटअप किया। एंड द फ्रेंच आर्मी वाज नाउ वेलकम्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज लाइक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790s। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था नेपोलियन बोनापार्टे का, तो अब उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका रूलिंग पीरियड कब से कब तक था, 1799 से 1815 तक, ठीक है। और उसी दौरान उन्होंने 1804 में एक कोड दिया जिसको हम कॉमनली जानते हैं विद द नेम ऑफ नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। अब इस कोड का क्या कहना था, लेट अस जस्ट रीड अबाउट इट। सो जो भी प्रिविलेजेस हैं जो नोबलमैन और क्लर्जी इंजॉय कर रहे हैं सिंस देयर बर्थ, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, यानी उसको हटा दिया जाए। सेकेंडली, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ से उनका मतलब था चाहे नेपोलियन बोनापार्टे हो या कोई भी कॉमन मैन हो, सबके सब इक्वल हैं। फ्यूडल सिस्टम, यानी जो आपका ये सिस्टम था नोबलमैन, क्लर्जी एंड ऑल दैट सिस्टम, उसको अबॉलिश कर दिया जाए। पेजेंट्स को फ्री कर दिया गया था फ्रॉम सेफ्टॉम। सेफ्टॉम इज जब उनको बिना पे के काम करना पड़ता है, उससे उनको फ्रीडम दे दी गई थी। एंड फ्रेंच आर्मी को एज हार्बिंजर्स भी बोलते हैं जिसे हम, ऑफ लिबर्टी, उनको बहुत जगहों पे इनवाइट करने लगे, बिकॉज दीज प्लेसेस लाइक स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, वॉर्सो एंड ब्रसेल्स, इनका मानना था दैट जैसे फ्रेंच आर्मी फ्रांस में एक रेवोल्यूशन लाई है, वैसे ही उनकी कंट्री में भी लाएगी।
Businessmen and small producers of goods felt that uniform law, standardized weight, and a common national currency would facilitate free trade across यूरोप. बिकॉज मैंने आपको जैसे पहले बताया था, एक स्टैंडर्डाइज एक कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आ गया, साथ ही में कॉमन नेशनल करेंसी आ गई. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया हम रुपी को ही यूज करते हैं एज द नेशनल करेंसी, जिसकी वजह से ट्रेड जो है बहुत कन्वीनियंट होता है. साथ ही साथ में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया. सो ऑल इन ऑल नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम करे एंड नाउ दे वर इन अ मूड लाइक कि अब अच्छे टाइम आए हैं. बट नो, जैसे बोलते हैं खुशी को एक बुरी नजर लगना, sort of that, so it is believed that ये जो खुशी थी it didn't lasted for long and sooner लोगों को लगने लग गया कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो छीन गई है. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेपोलियन के द्वारा हायर टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए, आर्मी के अंदर फोर्स एनरोलमेंट करवाई गई लोगों की, एंड सेंसरशिप यानी कि क्या चीज आएगी पुट अक्रॉस होगी न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में, और क्या नहीं, ये सब भी उसने करना शुरू कर दिया. और इन तीन चीजों की वजह से ही उसका सारा किया कराया वेंट वेस्ट, बिकॉज उसकी सारी अच्छाई जो थी वो ओवरशैडो हो गई इन तीन चीजों की वजह से. एंड फाइनली दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इस स्लाइड्स में जितना भी मैटर है आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने 5 मार्कर, 3 मार्कर एंड 1 मार्कर के क्वेश्चंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई नेपोलियन के बारे में पूछता है या सिविल कोड के बारे में पूछता है, आई होप यू कैन राइट. सिमिलरली क्या क्या चेंजेस थे, जो मेजर चेंजेस हुए रेवोल्यूशन की वजह से, आप वो भी लिख सकते हैं. एंड फाइनली फ्रेडरिक सॉरी कौन था, उसने उसकी पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया, आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं. सो दैट इज ऑल जो इस स्लाइड में वी हैड टू डिस्कस. आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर so that you can understand the chapter well. So thank you for watching and keep learning.